السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے لیکن کوشش کریں گے کہ 20واں سپارہ آج ختم کریں. لیٹ اس لیے ہو گئی کہ میں تھوڑا سا سو لیا، جو کہ آپ کو شاید میری پھولی ہوئی آنکھوں سے لگ رہا ہوگا. مین وائل یہ بتاتے چلے کہ میرے ایک بہت عزیز دوست نے جو کہ یہ ترجمے سنتے رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بہت ہینڈی گفٹ بھیجا جو کہ ہم آج استعمال کریں گے. تو apparently I got my halo. So here we go. So in case you're wondering why you guys can see me better, you guys have Usman Khalid to thank. He said that he did not want me to mention his name, but I don't care. Fix this, please. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا. 20 پارے سے شروع کریں گے، وقت بہت کم ہے. امن خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے. تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پرے ہٹ رہے ہیں. بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان آڑ بنائی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بلکہ ان کفار میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں. بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور تکلیف دور فرماتا ہے اور تمہیں زمین میں وارث و جانشین بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک اتر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ اللہ ان سے برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر اسی کو دہرائے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ فرما دیجئے، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم انتہا کو پہنچ کر منقطع ہو گیا، مگر وہ اس سے متعلق محض شک میں ہی مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کے علم قطعی سے اندھے ہیں. اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نکالے جائیں گے؟ در حقیقت اس کا وعدہ ہے. در حقیقت یہ آیت دوبارہ پڑھیں گے.
اور काफिर लोग कहते हैं क्या जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम निकाले जाएंगे। दर हकीकत इसका वादा हमसे भी किया गया और इससे पहले हमारे बाप दादा से भी। ये अगले लोगों के मन घड़त अफसानों के सिवा कुछ नहीं। फरमा दीजिए तुम जमीन में सैरो सयाहत करो, फिर देखो मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। और ऐ हबीब मुकर्रम, आप उनकी बातों पर गमजदा ना हुआ करें और ना उस मकर फरेब के बाइस जो वो कर रहे हैं तंग दिली में मुब्तला हो। और वो कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। फरमा दीजिए कुछ बईद नहीं कि उस आजाब का कुछ हिस्सा तुम्हारे नजदीक ही आ पहुंचा हो जिसे तुम बहुत जल्द तलब कर रहे हो। और बेशक आपका रब लोगों पर फजल वाला है, और बेशक आपका रब लोगों पर फजल फरमाने वाला है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और बेशक आपका रब उन बातों को जरूर जानता है जो उनके सीने छुपाए हुए हैं और जो ये आश्कार करते हैं। और आसमानों और जमीन में कोई पोशीदा चीज नहीं है मगर रोशन किताब में है। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने वो बेशतर चीजें बयान करता है जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं। और बेशक ये हिदायत है और मोमिनों के लिए रहमत है। और बेशक आपका रब उनके दरमियान अपने हुक्म अदल से फैसला फरमाएगा और वो गालिब है, बहुत जानने वाला है। बस आप अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक आप सरीह हक पर हैं। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपने तो इन मुर्दों यानी हयात ईमानी से महरूम काफिरों को अपनी पुकार सुनाते हैं। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप ना तो इन मुर्दों को अपनी पुकार सुनाते हैं और ना ही बहरों को, और जबकि वो पीठ फेरे जा रहे हों, और ना ही आप अंधों को उनकी गुमराही से बचाकर हिदायत देने वाले हैं। आप तो उन्हीं को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान ले आते हैं, सो वही लोग मुसलमान हैं। और जब उन पर फरमान पूरा होने का वक्त आ जाएगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे गुफ्तगू करेगा, क्योंकि लोग हमारी निशानियों पर यकीन नहीं करते थे। यार दोबारा पढ़ेंगे, इसलिए नहीं कि मैंने गलत पढ़ी, बल्कि इसलिए सुबह अल्लाह, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत। और जब उन पर फरमान पूरा होने का वक्त आ जाएगा तो हम उनके लिए जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे गुफ्तगू करेगा, क्योंकि लोग हमारी निशानियों पर यकीन नहीं करते थे। और जिस दिन हम हर उम्मत से उन लोगों का गिरोह जमा करेंगे जो हमारी आयतों को झुटलाते थे, सो वो रोके जाएंगे, यहां तक कि जब वो सब आ पहुंचेंगे तो इरशाद होगा क्या तुम मेरी आयतों को झुटलाते थे हालांकि तुम इल्म से उन्हें कामिलन जान भी नहीं सके थे। या इसके अलावा और क्या सबब था जो तुम किया करते थे। और उन पर हमारा वादा पूरा हो चुका इस वजह से कि वो जुल्म करते रहे, सो वो कुछ बोल न सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात बनाई ताकि वो इसमें आराम कर सकें और दिन को रोशन बनाया। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो वो घबरा जाएंगे जो आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं, मगर जिन्हें अल्लाह चाहेगा। और सब उसकी बारगाह में आजिज़ी करते हुए हाजिर होंगे। और तू पहाड़ों को देखेगा तो ख्याल करेगा कि जमे हुए हैं, हालांकि वो बादल के उड़ने की तरह उड़ रहे होंगे। अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत और मुस्तहकम बना रखा है। बेशक वो उन सब कामों से खबरदार है जो तुम करते हो। जो शख्स उस दिन नेकी लेकर आएगा उसके लिए इससे बेहतर जजा होगी, और वो लोग उस दिन घबराहट से महफूज व मामून होंगे। और जो शख्स बुराई लेकर आएगा तो उनके मुंह आग में औंधे डाले जाएंगे। बस तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि इस शहर मक्का के रब की इबादत करूं जिसने इसे इज्जत और हुर्मत वाला बनाया है और हर चीज उसी की है। और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फर्माबरदारों में रहूं, नेज ये कि मैं कुरान पढ़कर सुनाता रहूं।
सो जिस शख्स ने हिदायत कबूल की तो उसने अपने ही फायदे के लिए की, राह रास्त इख्तियार की, और जो बहका रहा तो आप फरमा दें कि मैं तो सिर्फ डर सुनाने वालों में से हूं। यह आयत दोबारा पढ़ेंगे। नेज ये कि मैं कुरान पढ़कर सुनाता रहूं, सो जिस शख्स ने हिदायत कबूल की तो उसने अपने ही फायदे के लिए राह रास्त इख्तियार की, और जो बहका रहा तो आप फरमा दें कि मैं तो सिर्फ डर सुनाने वालों में से हूं। और आप फरमा दीजिए कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, वो अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखा देगा, सो तुम उन्हें पहचान लोगे, और आपका रब उन कामों से बेखबर नहीं जो तुम अंजाम देते हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल क़सस मक्की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ता सीन मीम, ये रोशन किताब की आयतें हैं। हम आप पर मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के हकीकत पर मबनी हाल में से उन लोगों के लिए कुछ पढ़कर सुनाते हैं जो ईमान रखते हैं। बेशक फिरौन जमीन में सरकश व मुतकब्बिर हो गया था और उसने अपने बाशिंदों को फिरकों में बांट दिया था। उसने इनमें से एक गिरोह को कमजोर कर दिया था कि उनके लड़कों को जिबह कर डालता और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देता। बेशक वो फसाद अंगेज लोगों में से था। और हम चाहते थे कि हम ऐसे लोगों पर एहसान करें जो जमीन में कमजोर कर दिए गए थे और उन्हें रहबर व पेशावा बना दें और उन्हें वारिस बना दें, और हम उन्हें मुल्क में हुकूमत व इक़्तिदार बख्शें और फिरौन और हामान और इन दोनों की फौजों को वो दिखा दें जिससे वो डरा करते थे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ये बात डाली कि तुम इन्हें दूध पिलाती रहो, फिर जब तुम्हें इन पर कत्ल कर दिए जाने का अंदेशा हो जाए तो इन्हें दरिया में डाल देना, और ना तुम इस सूरत हाल से खौफजदा होना और ना रंजीदा होना। बेशक हम इन्हें तुम्हारी तरफ वापस लौटाने वाले हैं और इन्हें रसूलों में शामिल करने वाले हैं। फिर फिरौन के घर वालों ने उन्हें उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और बाइस गम साबित हों। बेशक फिरौन और हामान और उन दोनों की फौजें सब खताकार थे। और फिरौन की बीवी ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कहा कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंख के लिए ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसको बेटा बना लें। और वो बेखबर थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल सब्र से खाली हो गया। करीब था कि वो अपने बेकरारी के बायस और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल खाली हो गया। करीब था कि वो इस राज को जाहिर कर देती अगर हम उनके दिल पर सब्र और सुकून की कुव्वत ना उतारते ताकि वो यकीन रखने वालों में से रहें। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनकी बहन से कहा कि उनके पीछे जाओ। सो वो उन्हें दूर से देखती रही और वो लोग बेखबर थे, और हमने पहले ही से मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। सो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वालों की निशानदही करूं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे की परवरिश करते हैं और वो इसके खैर ख्वाह हों? बस हमने मूसा अलैहिस्सलाम को यूं उनकी वालिदा के पास लौटा दिया ताकि उनकी आंख ठंडी रहे और वो रंजीदा ना हो, और ताकि वो यकीन से जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और एतदाल पर आ गए तो हमने उन्हें हुक्म नबूवत और इल्म दानिश से नवाजा, और हम नेकोकारों को इसी तरह सिला दिया करते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम शहर मिस्र में दाखिल हुए इस हाल में कि शहर के बाशिंदे नींद में गाफिल पड़े थे।
तो उन्होंने इसमें 2 मर्दों को बाहम लड़ते हुए पाया। ये एक तो उनके अपने गिरोह बनी इसराइल में से था और ये दूसरा उनके दुश्मनों कौम फिरौन में से था। बस उस शख्स ने जो इन्हीं के गिरोह में से था आपसे उस शख्स के खिलाफ मदद तलब की जो आपके दुश्मनों में से था। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मुक्का मारा तो उसका काम तमाम कर दिया। फिर फरमाने लगे, ये शैतान का काम है, बेशक वो सरीह बहकाने वाला दुश्मन है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, सो तू मुझे मुआफ फरमा दे। बस उसने उन्हें मुआफ फरमा दिया, बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, इस सबब से कि तूने मुझ पर एहसान फरमाया है, अब मैं हरगिज मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। दोबारा पढ़ेंगे। अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, उस सबब से कि तूने अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, इस सबब से कि तूने मुझ पर एहसान फरमाया है, अब मैं हरगिज मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। बस मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शहर में डरते हुए सुबह की, इस इंतजार में तो दफातन वही शख्स जिसने आपसे गुज़िश्ता रोज मदद तलब की थी आपको दोबारा इमदाद के लिए पुकार रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, बेशक तू सरीह गुमराह है। सो जब उन्होंने इरादा किया कि उस शख्स को पकड़ें जो इन दोनों का दुश्मन है, तो वो बोल उठा, ऐ मूसा, क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो जैसा कि तुमने कल एक शख्स को कत्ल कर डाला था? सो जब उन्होंने इरादा किया कि उस शख्स को पकड़े जो इन दोनों का दुश्मन है, तो वो बोल उठा, ऐ मूसा, क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो जैसा कि तुमने कल एक शख्स को कत्ल कर डाला था? तुम सिर्फ यही चाहते हो कि मुल्क में बड़े जाबिर बन जाओ और तुम ये नहीं चाहते कि इस्लाह करने वालों में से बनो। और शहर के आखिरी किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ मूसा, सरदार आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं कि वो आपको कत्ल कर दें, सो आप निकल जाएं, बेशक मैं आपकी खैर ख्वाहों में से हूं। सो मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर इंतजार करते हुए निकल खड़े हुए। अर्ज किया, है मेरे रब, मुझे जालिम कौम से निजात अता फरमा। और जब वो मदीन की तरफ रुख करके चले, कहने लगे, उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधी राह दिखा देगा। और जब वो मदीन के पानी पर पहुंचे, और जब वो मदीन की तरफ रुख करके चले, कहने लगे, उम्मीद है मेरा रब मुझे सीधी राह दिखा देगा। और जब वो मदीन के पानी पर पहुंचे, तो उन्होंने उस पर लोगों का एक हुजूम पाया जो पानी पिला रहे थे, और उनसे अलग एक जानिब 2 औरतें देखीं जो अपनी बकरियों को रोके हुए थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों इस हाल में क्यों खड़ी हो? दोनों बोली कि हम पानी नहीं पिला सकती यहां तक कि चरवाहे वापस ले जाए, और हमारे वालिद उमर रसीदा बुजुर्ग हैं। सो उन्होंने दोनों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ पलट गए और अर्ज किया, ऐ रब, मैं हर उस भलाई का जो तू मेरी तरफ उतारे मोहताज हूं। फिर थोड़ी देर बाद उनके पास उन दोनों में से एक लड़की आई जो शर्मो हया के अंदाज से चल रही थी। उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपको उस मेहनत का मुआवजा दें जो आपने हमारे लिए पानी पिलाया है। सो जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उनसे पिछले वाकयात बयान किए, तो उन्होंने कहा, आप खौफ न करें, आपने जालिम कौम से निजात पा ली है। उनमें से एक लड़की ने कहा, ऐ मेरे वालिद गिरामी, इन्हें अपने पास मजदूरी पर रखें। बेशक बेहतरीन शख्स जिसे आप मजदूरी पर रखें वही है जो ताकतवर ईमानतदार हो। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 लड़कियों में से एक का निकाह आपसे कर दूं। इस महर पर
کہ آپ 8 साल तक मेरे पास उजरत पर काम करें, फिर अगर आपने 10 पूरे कर दिए तो आपकी तरफ से एहसान होगा, और मैं आप पर मुशक्कत नहीं डालना चाहता। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे नेक लोगों में से पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे और आपके दरमियान तय हो गया, 2 में से जो मुद्दत भी मैं पूरी करूं सो मुझ पर कोई जबर नहीं होगा, और अल्लाह उस बात पर जो हम कह रहे हैं निगहबान है। और अल्लाह उस बात पर जो हम कह रहे हैं निगहबान है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर ली और अपनी अहलिया को लेकर चले तो उन्होंने तूर की जानिब से एक आग देखी। उन्होंने अपनी अहलिया से फरमाया, तुम ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे लिए इस आग से कुछ खबर लाऊं या आतिश की कोई चिंगारी ताकि तुम तप उठो। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो वादिये तूर के दाएं किनारे से बाबरकत मकाम में एक दरख्त से आवाज दी गई कि ऐ मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, तमाम जहानों का परवरदिगार हूं, और ये कि अपनी लाठी जमीन पर डाल। आयत दोबारा से पढ़ेंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो वादिये तूर के दाएं किनारे से बाबरकत मकाम में वाक़े एक दरख्त से आवाज दी गई कि ऐ मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूं जो तमाम जहानों का परवरदिगार हूं, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखा कि वो तेज लहराती तड़पती हुई हरकत कर रही है, गोया वो सांप हो, तो पीठ फेर कर चल पड़े और पीछे मुड़कर ना देखा। नदाई, ऐ मूसा, सामने आओ और खौफ ना करो, बेशक तुम ईमान याफ्ता लोगों में से हो। अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी ऐब के सफेद चमकदार होकर निकलेगा, और खौफ से अपना बाजू अपने सीने की तरफ सुकेड़ लो। बस तुम्हारे रब की जानिब से ये 2 दलीलें फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ बस तुम्हारे रब की जानिब से ये 2 दलीलें फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ हैं, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैंने उनमें से एक शख्स को कत्ल कर डाला था, सो मैं डरता हूं कि वो मुझे कत्ल कर डालेंगे, और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम वो जुबान में मुझसे ज्यादा फसीह हैं, सो उन्हें मेरे साथ मददगार और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम वो जुबान में मुझसे ज्यादा फसीह हैं, सो उन्हें मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दे कि वो मेरी तस्दीक कर सकें। मैं उस बात से डरता हूं कि लोग मुझे झुटलाएंगे। इरशाद फरमाया, हम तुम्हारा बाजू और तुम्हारे भाई इरशाद फरमाया, हम तुम्हारा बाजू तुम्हारे भाई के जरिए मजबूत कर देंगे, और हम तुम दोनों के लिए हैबत और गलबा पैदा किए देते हैं, सो वो हमारी निशानियों के सबब से तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तुम दोनों और जो लोग तुम्हारी पैरवी करेंगे गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास हमारी वाज़ेह और रोशन निशानियां लेकर आए तो वो लोग कहने लगे कि ये तो मन घड़त जादू के सिवा कुछ नहीं है, और हमने ये बातें अपने पहले आबाओ व अजदाद में कभी नहीं सुनी थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब उसको खूब जानता है जो उसके पास है, हिदायत लेकर आया है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब उसको खूब जानता है जो उसके पास से हिदायत लेकर आया है, और उसको भी जिसके लिए आखिरत के घर का अंजाम होगा, बेशक जालिम फलाह नहीं पाएंगे। और फिरौन ने कहा, ऐ दरबारियों, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं जानता। ऐ हामान, मेरे लिए गारे को आग लगा दे, फिर मेरे लिए इनसे एक ऊंची इमारत तैयार कर, शायद मैं मूसा के खुदा तक रसाई पा सकूं, और मैं तो इसको झूठ बोलने वालों में गुमान करता हूं। और उस फिरौन ने खुद और उसकी फौजों ने मुल्क में नाहक तकब्बुर और सरकशी की, और ये गुमान कर बैठे कि वो हमारी तरफ नहीं लौटाए जाएंगे। सो हमने उसको और उसकी फौजों को पकड़ लिया और उनको दरिया में फेंक दिया। तो आप देखिए कि जालिमों का अंजाम कैसा हुआ, और हमने उन्हें पेशावा बना दिया।
کہ وہ दोज़ख की तरफ बुलाते थे और क़यामत के दिन उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी, और हमने उनके पीछे इस दुनिया में लानत लगा दी और क़यामत के दिन वो बदहाल लोगों में होंगे। और बेशक हमने इसके बाद कि हम पहली कौमों को हलाक कर चुके थे, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत थी, ताकि वो नसीहत कबूल करे। और आप मगरबी जानिब नहीं थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हुक्म भेजा था, और ना आप गवाही देने वालों में से थे, लेकिन हमने कई कौमें पैदा फरमाई, फिर इन पर तवील मुद्दत गुजर गई, और ना आप अहले मदीन में लेकिन हमने कई कौमें पैदा फरमाई, फिर उन पर तवील मुद्दत गुजर गई, और ना आप अहले मदीन में मुकीम थे कि आप उन पर हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हो, लेकिन हम ही मबऊस फरमाने वाले हैं। और ना आप तूर के किनारे थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को नदा फरमाई, मगर आपके रब की जानिब से रहमत है, ताकि आप उस कौम को डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डर सुनाने वाला नहीं आया, ताकि वो नसीहत कबूल करें। और अगर ये बात ना होती कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे उनके आमाल बद के बायस जो उन्होंने खुद अंजाम दिए, तो वो ये ना कहने लगे कि आए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों नहीं भेजा ताकि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और हम ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब उनके पास हमारे हुजूर से हक आ पहुंचा तो वो कहने लगे कि इस रसूल को इन निशानियों जैसी निशानियां क्यों नहीं दी गईं जो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। क्या उन्होंने उन निशानियों का इनकार नहीं किया था जो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। वो कहने लगे कि दोनों जादू एक दूसरे की ताईद और मुवाफिकत करते हैं, और उन्होंने कहा कि हम सबके मुनकिर हैं। आप फरमा दें कि तुम अल्लाह के हुजूर से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं उसकी पैरवी करूंगा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो आपका इरशाद कबूल ना करें तो आप जान लें वो महज अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। फिर अगर वो आपका इरशाद कबूल ना करें तो आप जान लें वो महज अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। और उस शख्स से ज्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह की जानिब से हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे। बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं फरमाता, और दर हकीकत हम उनके लिए पै दर पै फरमान भेजते रहे ताकि वो नसीहत कबूल करे। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब अता की थी वो इस पर ईमान रखते हैं, और जब उन पर पढ़कर सुनाया जाता है तो वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, बेशक ये हमारे रब की जानिब से हक है। हकीकत में तो हम इससे पहले ही मुसलमान हो चुके थे। ये वो लोग हैं जिन्हें उनका अजर 2 बार दिया जाएगा, इस वजह से कि उन्होंने सब्र किया और वो बुराई को भलाई के जरिए दफा करते हैं, और उस अता में से जो हमने उन्हें बख्शी खर्च करते हैं। और जब वो कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो वो इससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, तुम पर सलामती हो, हम जाहिलों को नहीं जागते। तुम पर सलामती हो, हम जाहिलों को नहीं चाहते। हकीकत यह है कि जिसे आप चाहते हैं उसे राह हिदायत पर आप खुद नहीं लाते, बल्कि जिसे अल्लाह चाहता है राह हिदायत पर चला देता है, और वो राह हिदायत पाने वालों से खूब वाकिफ है। या दोबारा पढ़ेंगे। माजरत फंबल ज्यादा हो गए आज, वजह मालूम नहीं है, शायद मैं सो के उठा हूं इसलिए, या शायद लिखाई मुश्किल है आज, और ब्रैकेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन तफसील वाला ज्यादा है। हकीकत यह है कि जिसे आप चाहते हैं उसे राह हिदायत पर आप खुद नहीं लाते, बल्कि जिसे अल्लाह चाहता है राह हिदायत पर चला देता है, और वो राह हिदायत पाने वालों से खूब वाकिफ है। और कहते हैं कि अगर हम आपकी मौयत में हिदायत की पैरवी कर लें तो हम अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे। क्या हमने उन्हें अमन वाले हरम शहर मक्का जो आप ही का वतन है में नहीं बसाया, जहां हमारी तरफ से रिस्क के तौर पर हर जिन्स के फल पहुंचाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते।
اور ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور و ناشکری کر رہی تھیں. تو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی وارث و مالک ہیں. اس آیت کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں کہ سنس کوئنسیڈنٹلی یہ آیت ادھر آ گئی ہے، میں کل یا پرسوں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، اسکم تھرو اٹ، جس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ سعودی عرب میں کچھ پرانی سویلائزیشن کے نشانات پائے گئے ہیں دیٹ آر بلیو ٹو بی اولڈر دین دا پیرامڈس، جو کہ مصر کے جو پیرامڈز ہیں ان سے زیادہ پرانے سمجھے جاتے ہیں. اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غرور و ناشکری کر رہی تھیں. تو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد کبھی آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی وارث و مالک ہیں. اور آپ کا رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اس کے بڑے مرکزی شہر کیپٹل میں پیغمبر بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرے. اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہو. اور جو چیز بھی تمہیں عطا کی گئی ہے سو دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق و زینت ہے، مگر جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور دائمی ہے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی اچھا وعدہ فرمایا ہو پھر وہ اسے پانی والا کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی اچھا وعدہ فرمایا ہو پھر وہ اسے پانے والا ہو جائے؟ اس کی مثل ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کے سامان سے نوازا ہو پھر وہ روز قیامت حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خیال کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے. ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ در حقیقت ہماری پرستش نہیں کرتے تھے. اور کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ سو وہ انہیں پکاریں گے، بس وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے کاش وہ راہ ہدایت پا چکے ہوتے. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان پر اس دن خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ نہ سکیں گے. لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یقیناً وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور منتخب فرما لیتا ہے. ان لوگوں کو اس امر میں کوئی مرضی اور اختیار حاصل نہیں ہے. اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان سے جنہیں وہ شریک گردانتے ہیں. اور آپ کا رب ان کو جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ آشکار کرتے ہیں. اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. دنیا اور آخرت میں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اور حکم و فرما روائی اسی کی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فرما دیجئے ذرا اتنا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ رات طاری فرما دے، اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ فرما دیجئے ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ دن طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کر سکو. اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل
तलाश कर सको और ताकि तुम शुक्रगुजार। फंगल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं आज, मुझे खुद नहीं समझ आ रही क्यों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया ताकि तुम रात में आराम करो और दिन में उसका फजल तलाश कर सको और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा तो इरशाद फरमाएगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम ख्याल करते थे, और हम हर उम्मत से एक गवाह निकालेंगे। फिर हम कहेंगे कि तुम अपनी दलील लाओ, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह ही की है, और उनसे वो सब जाती रहेंगी जो वो झूठ बांधा करते थे। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने लोगों पर सरकशी की और हमने उसे इस कदर खजाने अता किए थे कि उसकी पूंजियां उठाना एक बड़ी ताकतवर जमात को दुश्वार होता था। जबकि उसकी कौम ने उससे कहा, तू गुरूर न कर, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं फरमाता, और तू उस दौलत में से जो अल्लाह ने तुझे दे रखी है आखिरत का घर तलब कर, और दुनिया से भी अपना हिस्सा ना भूल, और तू लोगों से वैसा ही एहसान कर जैसा एहसान अल्लाह ने तुझसे फरमाया है, और मुल्क में फसाद अंगेजी तलाश न कर, बेशक अल्लाह फसाद बपा करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वो कहने लगा, मुझे तो ये माल सिर्फ उस इल्म और हुनर की बिना पर दिया गया है जो मेरे पास है। क्या उसे ये मालूम न था कि अल्लाह ने वाक़अतन इससे पहले बहुत सी ऐसी कौमों को हलाक कर दिया था जो ताकत में इससे कहीं ज्यादा सख्त थीं और जमा करने में कहीं ज्यादा थीं, और मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फिर वो अपनी कौम के सामने जीनत व आराइश की हालत में निकला। वो लोग बोल उठे जो दुनियावी जिंदगी के ख्वाहिशमंद थे, काश हमारे लिए ऐसा होता जैसा कारून को दिया गया है, बेशक वो बड़े नसीब वाला है। और वो लोग जिन्हें इल्म हक दिया गया था बोल उठे, तुम पर अफसोस है, अल्लाह का सवाब उस शख्स के लिए बेहतर है जो ईमान लाया हो और नेक अमल करता हो, मगर ये सब्र करने वालों के सिवा किसी को अता नहीं किया जाएगा। फिर हमने उस कारून को और उसके घर को जमीन में धंसा दिया, सो अल्लाह के सिवा उसके लिए कोई भी जमात न थी जो उसकी मदद कर सकती, और ना वो खुद ही अजाब को रोक सका। और जो लोग कल उसके मकाम और मर्तबे की तमन्ना कर रहे थे, कहने लगे, कितना अजीब है कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा फरमाता और तंग फरमाता है। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना फरमाया होता तो हमें धंसा देता। हाय ताज्जुब है कि काफिर निजात नहीं पा सकते। वो आखिरत का घर है जिसे हमने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो ना तो जमीन में सरकशी और तकब्बुर चाहते हैं और ना फसाद अंगेजी, और नेक अंजाम परहेजगारों के लिए है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर सिला है, और जो शख्स बुराई लेकर आएगा तो बुरे काम करने वालों को कोई बदला नहीं दिया जाएगा मगर उसी कदर जो वो करते रहे थे। बेशक जिसने आप पर कुरान फर्ज किया है, यकीनन वो आपको लौटने की जगह की तरफ वापस ले जाने वाला है। फरमा दीजिए, मेरा रब इसे खूब जानता है जो हिदायत लेकर आया और उसे जो सरीह गुमराही में है। फरमा दीजिए, मेरा रब उसे खूब जानता है जो हिदायत लेकर आया और उसे जो सरीह गुमराही में है। और तुम इस बात की उम्मीद ना रखते थे कि तुम पर किताब उतारी जाएगी, मगर तुम्हारे रब की रहमत, और तुम इस बात की उम्मीद ना रखते थे कि तुम पर किताब उतारी जाएगी, मगर ये तुम्हारे रब की रहमत से उतरी है। पस तुम हरगिज काफिरों की repeat that again. لا حول ولا قوة إلا بالله.
और तुम इस बात की उम्मीद न रखते थे कि तुम पर किताब उतारी जाएगी मगर तुम्हारे रब की रहमत है, बस तुम हरगिज काफिरों के मददगार न बनना, और वो तुम्हें हरगिज अल्लाह की आयतों से बाज न रखें इसके बाद कि वो तुम्हारी तरफ उतारी जा चुकी हैं, और तुम अपने रब की तरफ बुलाते रहो और मुशरिकों में से हरगिज न होना, और तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पूजा करो उसके सिवा कोई माबूद और तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पूजा करो उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसकी जात के सिवा हर चीज फानी है, हुक्म उसी का है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मगरिब होने वाली है, अफ्तारी के वक्त होने वाला है। अल-सलासा पे रुकेंगे और इसका जो आखिरी क्वार्टर है 20वें पारे का, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे और उसके फौरन बाद 21वां पारा पढ़ेंगे। माजरत आज फंबल ज़रा से ज़्यादा हो गए, खुद नोटिस कर रहा था, कुछ की मुझे भी समझ नहीं आई, कभी कभार हो जाता है। सपोज सो की फौरन उठा था अभी शायद इसलिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम अल्लाह ताला की रज़ा से राज़ी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।